हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एटिपिकल मेडिको, थोड़ा सा हटके मेडिको। तो डॉक्टर साहब सीरीज का आज पहला केस है। फर्स्ट केस, पेरी ऑर्बिटल इडिमा। सो एट द फिफ्थ डे ऑफ सारपास ट्रैक एट अराउंड 2:30 in the afternoon we reached the highest campsite, Nagaru camp at 12,500 feet. So beautiful, completely covered in snow, such a fantastic view. Further, after tent allotment, we all went out to play some crazy stuff with snow. We made snowman, we made snowballs, we hit each other, we slipped, we fell down. We did everything that was possible with the snow for the next 2 hours and we enjoyed a lot. भैया बहुत ज़्यादा crazy मज़े किए, बहुत ज़्यादा. After that, at around 4:30, we came back to our campsite and had high tea. After that, there was early dinner at around 6:30 because in Nagaru you don't have light. So once the sun is gone, then there is no source of light, only your torches. So after having dinner, we all went into the tents because it was minus 10 degree outside and the winds were very chilling. So we all went into our sleeping bags and we are all talking. We are making fun of each other. Some, that boys, what boys do. Just time pass talks, and after that we were all feeling sleepy. So around 9:50, 9:30 we were all just about to sleep. All the torches were off, and then I hear a sound कि वो मेडिकल वाला लड़का कौन से टेंट में है, वो मेडिकल वाला लड़का. And I shouted back from my tent, मैं टेंट नंबर 6 में हूँ. And I was very much surprised. I was not expecting that at 9:30 anyone other than group of friends were awake. And I was just about to open the tent chain for see who was calling, and before I could open it, it opened automatically, and it was opened by Prasad uncle. Prasad uncle is an experienced trekker. He is trekking from like last 20 years and he was here with his wife and his son. मैंने पूछा yes अंकल क्या हुआ. So अंकल ने कहा कि कार्तिक को, his son, 14 year old son को आँखों के चारों ओर सूजन आ गई है और उसकी आँखें ठीक से खुल नहीं रही है, उसे देखने में भी दिक्कत हो रही है. And I was terrified because at this altitude and if you want to reach the next campsite, I'm not telling a village but a campsite, it will take you 5 hours. And at this point if you are starting to lose your vision, then it could be terrifying. But I didn't talk much. I came out of my sleeping bag, quickly wore my jacket and got out towards his tent. At night the snow becomes very hard. In mornings the snow is soft, so if you put your leg, the snow will get deep and it will be like a step for you and you will not slip that easily. But in night it's very easy to slip. So I took 2 sticks, one mine and one Akash bhai's stick, and I went towards his tent. The first thing which came to my mind was traumatic injury or injury to eye, because we were playing with snowballs and sometimes snowballs are really hard and everyone was wearing sunglasses because to prevent snow blindness. So maybe a snowball has hit his eye, it is sunglasses, and because of that it may lead to edema. So कार्तिक के टेंट के पास पहुंचते ही मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और कार्तिक की आंखों को देखने की कोशिश की, और मैं क्या देखता हूँ कि ही हैज़ एन बायलैटरल पेरीऑर्बिटल इडिमा. दोनों आंखों में एक समान सूजन है. और तभी मेरे मन से वो इंजरी वाला जो विचार था वो चला गया कि अगर कुछ लगा होता तो दोनों आंखों में एक समान इंजरी होना बहुत अनकॉमन है. इसीलिए फिर मुझे लगा कि अब मुझे और ओपन माइंड रख के सोचना पड़ेगा कि और क्या हो सकता है. फिर कार्तिक को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एंड ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी. सो मैंने उसे बोला कि तू रेस्ट कर, और उसके मम्मी पापा से हिस्ट्री लेना चालू किया. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग वो मुझे मिली कि जब 2:30 को हम सब नगारू पहुँचे तो कार्तिक को थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था और उसकी बॉडी में थोड़ी माइल्ड मसल पेन उसे फील हो रहा था. इसीलिए उसके मॉम डैड ने उसे एस्प्रिन दी
कि तू अभी ले ले ताकि तू सबके साथ स्नो में खेल सके आराम से। दैट वॉज द फर्स्ट फाइंडिंग। द सेकेंड फाइंडिंग वॉज कि कार्तिक को पहले भी ऐसा हुआ है। ऐसा आंख पे नहीं हुआ है पर होठों पे हुआ है, होठों पे ऐसी सूजन आ गई थी। सो व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एंजियोइडिमा। और ये एक एलर्जिक रिएक्शंस में यूजुअली देखा जाता है। सेकेंड फाइंडिंग ये थी। थर्ड फाइंडिंग ये मिली कि ऐसा उसकी मम्मी को भी होता है कि कोई दवाई ले और उसके बाद उसको पूरे बदन में खुजली आने लगे या फिर फेस पे सूजन आ जाए, आंखों के आसपास या होठों के आसपास सूजन आ जाए। ये 3 फाइंडिंग्स मुझे मिली। Now I will be presenting the case history for you. So name Karthik, age 14 years, occupation student, resident of Mumbai, Navi Mumbai. Complaint was edema over the eyes, difficulty in opening eyes and seeing. Origin, duration and progress. Its origin was around at 6:30 in the evening. The duration is like around 3 hours. And progress, yes, it was progressive as told by his parents. History of past illness, yes, it was there is a history of some on and off allergic reactions. Personal history, appetite was normal, diet was vegetarian, sleep, bowel movement and maturation was normal. Further, there was no history of any type of addiction. Drugs history, yes, he took an aspirin tablet at around 2:30 in the afternoon. Family history, positive family history for allergic reactions in mother and his nanny. तो क्या है डायग्नोसिस? yes, you are right. It is hypersensitivity reaction type 1. hypersensitivity reaction मतलब किसी लोगों की बॉडी कोई चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव होती है। जैसे कि कार्तिक की बॉडी एस्प्रिन के लिए हाइपर सेंसिटिव थी। तो क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में? तो उसमें होता है कि IgE एंटीबॉडीज होती है, दैट इज एंटीजन स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज। और जब भी सेकेंड टाइम एंटीजन का एक्सपोजर होता है, जो इस केस में एंटीजन वाज एस्पिरिन, तो IgE एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल या बेजोफिल पे जाके बाइंड कर जाती है और जिससे बेजोफिल का डीग्रैन्युलेशन हो जाता है या कि वो टूट जाता है और रिलीज होता है हिस्टामिन। और हिस्टामिन है जड़ एलर्जिक रिएक्शन का। हिस्टामिन जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और जाके एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस देता है। अगर अब आपको पता चल गया है कि ये कैसे होता है तो आपको इसकी ट्रीटमेंट भी आती है। येस, यू आर राइट, हिस्टामिन को ब्लॉक करना है तो एंटी हिस्टामिनिक्स देने पड़ेंगे। तो एंटी हिस्टामिनिक्स एक्ट कैसे करते हैं? तो आपने वो तो किया ही होगा कि बस में गए और खिड़की से रुमाल डाल दिया कि भाई ये सीट तो मेरी है। सिमिलरली दवाई जाके रिसेप्टर पे रुमाल डाल देती है, तो उसके बाद हिस्टामिन आके उस सीट पे मतलब कि उस रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर पाता और इसकी वजह से अपना मैनिफेस्टेशन शो ही नहीं कर पाता और आपका एलर्जिक रिएक्शन हो गया ट्रीट। एंटी हिस्टामिनिक जो मैंने दी वो थी सेकेंड जनरेशन लीवोसिट्रीजिन। एक टैबलेट उसे मैंने दी रात के 9:30 बजे और मैं उस टेंट से अपने टेंट की ओर निकल पड़ा, होप करता हुआ कि यार पहला पेशेंट तो ठीक हो जाए प्लीज़। और सुबह फिर 3 बजे वेकअप कॉल आया और हम सब उठ गए और मैं टेंट से बाहर ही निकल रहा था। मैंने कार्तिक को जाते हुए देखा वॉशरूम। मैंने उसको पकड़ा, मैं कहा रुक 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 रुक, और उसकी आंखें, मैं कहा आंखें दिखा, और आप मानोगे नहीं दोस्तों 70% ऑफ इडिमा रिजॉल्व हो गया था। यस 70%, खाली 30% रह गया था। अब उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आंखें बढ़िया से खुल रही थी और काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहा था। तो फिर उसने पूरा सबमिट भी किया, नीचे भी आ गए हम नेक्स्ट कैंप पे। मैं खुश, अंकल खुश, आंटी खुश, कार्तिक खुश। फिर मुझे शाम को मिला 5 बजे। मैंने बोला कि ये अपने टेंट के बाहर से आइस पकड़, धो, रुमाल में डाल और आइस पैक कर 1 घंटा। फिर मुझे 6:30 बजे डिनर पे मिला, सब कुछ रिजॉल्व हो गया था, पूरा जैसा पहला था वैसे। और उसने मुझे ऐसा कहा कि आप लिख दो रे कि मैं नेपालियों को इंडियन में कन्वर्ट करता हूँ। इतना
इनकरेक्ट, इतना डिफरेंट, वियर्ड पर इनोसेंट कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक नहीं मिला था और मैंने फर्स्ट पेशेंट ऐसे ट्रीट किया. दिस वॉज द केस 1. फिर हम घर चले गए और बहुत खूबसूरत प्रसाद अंकल ने एक मैसेज भेजा जो मैं कहीं इधर डाल दूंगा और उसके बाद मैंने भी बढ़िया रिप्लाई दे दिया उन्हें. और दिस इज़ हाउ आई ट्रीटेड माई फर्स्ट पेशेंट. I hope you enjoyed my video, and if you did, then do consider subscribing my channel. Stay tuned for more case studies, more interesting things, more fun, and seeing a typical world from an atypical eye. Thank you so much. Take care. Goodbye. पर उस वक्त उसने दिखाया नहीं और सेकेंड टाइम में उसने फुल